یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. عزیزان گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، آج چوتھی مجلس عزا مجھ ناچیز کو پڑھنے کی توفیق ہوئی. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ پاک بی بی نے یہ ڈیوٹی لینے کے لیے، حالانکہ اس گھر کا بچہ بچہ بھی ذاکر ہے، اس گھر کا بچہ بچہ بھی عالم ہے، لیکن ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. دعا فرمائیں کہ پاک بی بی سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو اس فرش عزا کے بانی ہیں، اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، مولا ان کے درجات بھی عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور مولا ہمیں انہی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح تا قیامت عزاداری حسین علیہ السلام کو ہر چیز پہ بلند رکھ کر، ہر چیز سے اوپر رکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبانوں کو معطر کریں، اپنے جو بھی آپ کے بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ذہن میں رکھ کے اونچی صلوات پڑھیں، بآواز بلند ہدیہ صلوات. کیونکہ موضوع اجر رسالت ہے، 3 دن سے اس پہ بات کر چکا ہوں، آج چوتھا دن. کوشش کروں گا کہ اسی مضمون کو لے کے پھر آگے تھوڑا سمیٹ کے پھر فضائل و مصائب کے 2 جملے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اجر رسالت ہے کیا؟ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو شاید بہت لمبا وقت لگ جائے، لیکن اگر مختصراً کہوں تو آپ میری تائید کریں گے کہ اجر رسالت ولایت علی علیہ السلام. واہ 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 واہ، کیا بے شک. اجر رسالت عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے. بے شک بے شک بے شک. عزاداری اجر رسالت ولایت علی، عزاداری حسین اور حرمت سادات ہے. واہ 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 واہ. اور اجر رسالت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے ایک مرکزیت پہ قائم رہنا ہے. واہ 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 واہ. اور اگر میں اسے 5واں جو میرا پوائنٹ آغا جی سرکار نے دیے ہیں 5 نکات، وہ مرجیت ہے، احترام مرجیت ہے. میں سلام کروں گا اپنی اس قیادت کو کہ جس نے ہمیں یہ 5 نکتے دے کر بتا دیا کہ انہی پہ کاربند رہو تو اجر رسالت ہے. کیا بات ہے، کیا بات. یقین کریں دل سے. مولا ان بچوں کے بخت بلند فرمائے، کیونکہ یہ علی علی کرنا بھی جو ہے نا یہ عام بات نہیں ہے. یہ اتنا سخت موضوع ہے علی علی کرنا کہ اگر پڑھنے والی رسول جیسی ذات ہو، سننے والی اصحاب جیسی ذات ہو، بیچ میں سے پھر بھی ایک ملعون کھڑا ہو کے کہتا ہے اپنی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو بچوں یہی بات بتاؤں گا کہ ہماری آخرت یہی ہے، علی علی کرنا اور حسین حسین کرنا. اس بات کو کبھی دنیا میں بھولنا نہیں. ہمیشہ ولایت علی، علی علی کرنا، عزائے حسین، حسین حسین کرنا، یہ کبھی نہ بھولنا. اور یہ ہم بھول بھی نہیں سکتے کیونکہ
अपनी माओ की गोदों से सीखा ही यही है। जब हमारी माओ से पूछो ना तो वो कहती ही यही है कि हमने तो लिया ही तुम्हें शहजादे अली असगर के झूले से है। तो विलायत अली, अज़ादारी हुसैन, हुर्मत सादात, एक वाक़या बच्चों की समातों की नज़र करूंगा कि हुर्मत सादात क्यों ज़रूरी है। किसी शहर में एक सैयद आता था, गरीब था। मुअज़्ज़ात आले मोहम्मद किताब का नाम है, अगर किसी को शक हो तो वो जाके पढ़ सकता है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये जिल्द दोयम है उसकी, कि मुअज़्ज़ात आले मोहम्मद में एक शख्स गरीब सैयदज़ादा मोहताज हो गया, कर्जदार हो गया किसी का। कर्जदार जिसका हुआ उसका वो नंबरदार था, उसने आके प्रेशर डालना शुरू किया। अब वो सैयदज़ादा एक दिन कहे आज, फिर कहे 2 दिन बाद, नहीं हो सके तो क्या करे, मजबूरी थी। आखिर तंग आ गया वो नंबरदार भी, और एक दिन उसके घर पे आके कहता है कि अगर तूने कल तक मेरा कर्ज ना अदा किया तो नकले कुफर ना बाशत कि मैं तेरे मुंह में गलाजत भर दूंगा। उस मलाउन का ये कहना था। सैयदज़ादा तड़प गया, इधर यहाँ ये तड़पा, उधर कब्र रसूल तड़प गई। कहते हैं कि जब अगले दिन देखा लोगों ने कि नहीं आया नंबरदार, जब उसके घर गए तो देखा कि रात किसी हाजत की वजह से छत पे सोया हुआ था। हाजत की वजह से एक कोने पे जाके अपनी हाजत को रफा करने के लिए बैठा है, तो वहाँ पाँव स्लिप हुआ है। जब गिरा है नीचे तो आप यकीन करेंगे नीचे गलाजत का कुआं था। उस हालत में डूब के मरा कि पेट तक उसकी गलाजत चली गई। तो हुर्मत सादात इतनी जरूरी है कि कभी भी ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकाले जाएं। एहतराम सादात को मलूज़ खातिर रखा जाए, क्योंकि रसूल पाक का ये कौल है कि अगर सैयद मुत्तकी है तो उसके तकवे की वजह से उसकी इज्जत करो, अगर गुनाहगार है तो मेरी निस्बत की वजह से उसका एहतराम करो। बेशक बेशक। हमें क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए इस पूरा शोक दौर में हमारे कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद अहमद अली शाह मुस्लिम नदवी सरकार ने ये 5 नुकात दे के बता दिया कि इस पे कायम रहेंगे तो आप भी कायम रहेंगे, और आप कायम रहेंगे तो कायम के इंतजार में भी रहेंगे। क्या बात है, बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बखुदा मेंबर पे बैठा हूँ, सोच के कुछ और आया था पढ़ने के लिए, लेकिन जब यहाँ आके बैठा तो मैंने कुछ और सोचा कि नहीं, बच्चे बैठे हैं इन्हें सुनाऊंगा। लेकिन अब जो मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों का जो जोश देखा है, तो मैं कहता हूँ जो सोच के आया हूँ वही पढ़ूं। कहते हैं कि मरवान बिन अल-हकम, अल्लाह लानत करे इस पे, बल्कि है ही ना, बनु उमैया का दौर, और आप सब जानते हैं बनु उमैया का दौर, सब व शितम का दौर, कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सब व शितम, नकले कुफर नबाशत ये मलाउन करते थे। एक दफ़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि इस मरवान ने अपनी आदत से मजबूर होकर मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सब व शितम किया। इधर इसका सब व शितम करना था, उधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जनाब गाजी को इशारा किया। गाजी इशारा समझते थे, उसी वक्त आके उस मलाउन को गर्दन से पकड़ा है। गर्दन से पकड़ के कहते हैं मस्जिद है, एहतराम मस्जिद है, बाहर ले जाके तेरी ठुकाई करूंगा। बाहर लेके जाने लगे, उसने देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं तूने मेरे बाबा की शान में गुस्ताखी की है, माजरत का तू तलबगार नहीं हो सकता। उस वक्त इमाम हसन को देखता है, इमाम हसन भी मुंह मोड़ लेते हैं। उस वक्त मलाउन एक जुमला कहता है, एक जुमला ऐसा कहता है, पहले इससे पहले जुमला कहने से पहले हाज़रीन महफिल से कहता है अरे कोई तो मुझे बचा ले। उन्होंने कहा कि नहीं बचा सकते, तू अब्बास की गिरफ्त में है। तो पता चला अब्बास की गिरफ्त में है, तू बच ही नहीं सकता। शागिर्द है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्बास अलमदार, सबसे पहली शागिर्दी मौला कायनात की, उसके बाद शागिर्दी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की।
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब ये इसने देखा ना कि अब मेरी बचत की सूरत ही कोई नहीं है कि मैं अब्बास की गिरफ्त में हूँ, उस वक्त इस मलऊन ने एक ऐसी बात की कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मजबूरन तूने ये बात की है तो मैं छोड़ रहा हूँ। उसने मलऊन ने कहा कि आपको आपकी माँ का वास्ता, हाय 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 मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल में हूँ अभी। उस वक्त कहता है कि आपको आपकी माँ का वास्ता, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देख के फरमाते हैं भैया हुसैन छोड़ दे, मैं अपनी माँ का वास्ता किसी के खिलाफ नहीं करता। जनाब गाजी को हुक्म हुआ और जनाब गाजी ने छोड़ दिया। अब वो मरवान ने जब हाथों से निकला है ना, सीधा ज़मीन पे गिर गया, खड़ा नहीं हो पाता। तो ये अब्बास की गिरफ्त थी। अब बनो उमैया ये चीज़ें देख रही थी कि अब्बास की गिरफ्त है कैसी। अगर इसी तरह तरतीब से चलूँ तो एक ही पहला वाक़या जो कुतुब में मिलता है। दूसरा वाक़या जंग सफ़ीन का, कि जब सफ़ीन में मेरे मौला गाजी आए हैं ना, मौला कायनात खड़े हैं, जनाब हसनैन खड़े हैं, जनाब हसनैन के पीछे मौला के और जितने बेटे हैं या जितने मौला के इमाम के जितने भी साहब फर्जंद हैं तमाम खड़े हैं, पीछे जनाब गाजी सरकार खड़े हैं, उसके पीछे सफ़े खड़ी हैं। उस वक्त मौला फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज इस 2.5 लाख के लश्कर से मेरा एक बेटा कोई अकेला लड़े। क्या बात है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस वक्त देखते हैं कि मौला कायनात फरमाते हैं क्या आपने मेरा ऐलान नहीं सुना, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा लड़े। अरे आप तो मुबाइला से रसूल के बेटे हैं, आप तो वक्त मुबाइला से रसूल के बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज मेरा बेटा कोई लड़े, आज मेरा बेटा कोई लड़े। अलगर्ज मौला के एक फर्जंद आगे होते हैं, जैसे ही आगे होते हैं मौला फरमाते हैं बता तुझे क्या चाहिए ये पूरा लश्कर तबाह करने के लिए, तुझे क्या चाहिए ये पूरा लश्कर तबाह करने के लिए। उस वक्त कहते हैं मौला बाबा जान तलवार आपकी हो, घोड़ा आपका हो, तलवार आपकी हो, घोड़ा आपका हो, तलवार आपकी हो, घोड़ा भी आपका हो। अभी फजर की नमाज आप पढ़ा रहे हैं, मगरिबैन की नमाज पूरा लश्कर खत्म करके आपकी रकाब में आगे पढ़ूंगा। मौला कहते हैं तेरे जज्बे को सलाम, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, आज मुझे अली को कुछ जल्दी है, आज मुझे अली को कुछ जल्दी है। कहते हैं अच्छा दूसरे पे फर्जंद सामने आए। अभी दूसरे फर्जंद सामने आते हैं, वो भी इसी तरह यही बात करते हैं। मैं मुख्तसर करता चलूं कि जैसे ही वो दूसरे फर्जंद सामने आते हैं मौला के, दूसरे फर्जंद देखते हैं, कहते हैं मौला वही तलवार आपकी चाहिए, घोड़ा आपका चाहिए, तलवार आपकी चाहिए, घोड़ा आपका चाहिए। भाई ने कहा 1500 का लश्कर, मुझे 1000 का लश्कर दे, फजर की नमाज आपकी रकाब में, ज़ोहरैन आपकी रकाब में आके पढ़ूंगा, लश्कर तमाम खत्म होगा। मगर वहाँ फिर मौला कहते हैं बेटा आपके जज्बे को भी सलाम, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अली को आज बहुत जल्दी है। खुद बखुद फिक्र अमल की तरबियत हो जाया करेगी, खुद बखुद फिक्र अमल की तरबियत हो जाया करेगी, अपने बच्चों को अज़ाखानों में ले जाया करेगी। बेटा अब मौला अब्बास आगे आते हैं, कहा बाबा जान इजाजत, कहा हाँ बेटा ये बता तुझे चाहिए क्या ये 2.5 लाख का लश्कर तबाह करने के लिए। मेरे मौला ने जो अल्फाज फरमाए, मैं कहता हूँ रहती दुनिया तक सोने के कलम से लिखने के बराबर है। मौला कहते हैं भाइयों ने कहा तलवार आपकी चाहिए, घोड़ा आपका चाहिए, 1500 का लश्कर चाहिए, 1000 का लश्कर चाहिए, ना बाबा जान आपकी तलवार चाहिए, ना 1500 का लश्कर चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए। मौला पर पूछते हैं अब्बास फिर चाहिए क्या? तब इजाजत आपकी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत आपकी हो मर्जी हुसैन की। कहा ठीक है ये बता टाइम कितना लगेगा, वक्त कितना लगेगा। उस वक्त मेरे मौला गाजी
फरमाते हैं अभी पहले का सर हवा में होगा, आखिरी का सर मैं उड़ाता हुआ वापिस आपके कदमों में आके बोसा दे के कहूंगा बाबा जान आपका हक अदा किया या ना किया। अब मौला हुसैन बादशाह देखते हैं कि मौला गाजी की जंग हो रही है। अब मौला गाजी सरकार की ये जंग हो रही है, दो अशखास टीले पे खड़े हैं, एक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और एक मलऊन एक और जनाब मालिक अश्तर। ये दोनों अशखास खड़े होकर अब्बास की जंग देख रहे हैं। अब ये देखते हैं और मौला मालिक अश्तर से फरमाते हैं मालिक अश्तर ये बताओ मेरा अब्बास लड़ कैसा रहा है। कहते हैं मौला मेमना में है, कभी मेसरा में है, कभी यहाँ से सर उड़ रहे हैं, कभी वहां से सर उड़ रहे हैं। अरे मौला वो देखे वो लश्कर भाग रहा है और ये कह रहा है भाग रहा है और ये कह रहा है अरे अली आगे अली आगे। उस वक्त मौला फरमाते हैं वहां मेरे लाल तूने दुश्मनों से भी अली अली करा दिया। हैदर 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 बहादुर। ये तो था सफीन का मार्का। एक फजाइल का जुमला कि 9 मुहर्रम की रात को, ये मेरे मौला गाजी का फजाइल है कि 9 मुहर्रम की रात को फौजी अशकिया ने सोचा आज थोड़े से लोग अलग करते हैं अपने लश्कर से, एक जानिब से हमला करेंगे, सादात को ताराज करके सादात के खेमे कत्लो आम करके, और हम ये कहेंगे सुबह उठ के कि कोई डाकू कोई चोर आ गए थे जिन्होंने इन्हें मार दिया, हमारे हाथ रंगीन नहीं होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उधर कैफियतों का भी इमाम बैठा है, उधर वो इमाम बैठा है जो हवाओं का भी इमाम है, उधर वो इमाम बैठा है जो इंसानों का इमाम है, जो जानवरों का इमाम है, अलगर्ज के कायनात में जितनी चीजें हैं सब का इमाम है। बेशक वो ये अल्फाज हवाएं जो हैं मेरे मौला के कानों तक पहुंचाती हैं, उधर मौला के कानों में ये आवाज़ आती है, उधर मौला गाजी को बुलाते हैं, अब्बास जाओ, लफ्ज़ जो कह रहा हूँ बड़ी तवज्जो के हमें कि जाओ इन्हें आज रात की मोहलत दे दो। इन्हें ये नहीं कहा कि जंग डाल दो, इन्हें कहा आज रात की मोहलत दे दो, ये भी नहीं कहा जंग की मोहलत ले लो। अब जनाब गाजी घोड़े को एड़ लगा के मैदान में आते हैं, मैदान में खड़े होते हैं। एक फसीह और बलीग खुतबा है मौला का, वक्त की कमी है, फसीह और बलीग खुतबा है। सारे मेरी तरफ तवज्जो दें जरा, क्योंकि मौला गाजी का जिक्र है, तवज्जो मेरी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली हैदर। 9 लाख के लश्कर के सामने तन्हा अब्बास आके खड़े होके फरमाते हैं जो नहीं जानता उसे मैं बता दूं कि मैं अब्बास इब्ने अली हूँ, मैं वो हूँ जो बगैर लड़े पूरा लश्कर तबाह कर दूं, मैं चीख मारूं तुम्हारे दिल फट जाए, मेरी आंखों की ताब ना लाने की तुम में किसी की कोई जुर्रत नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मेरी आंखों की जलन से कोई बच के रह जाए। जब ये अल्फाज कहे ना तो मलाउन पता नहीं किस जगह से एक शख्स बोला अब्बास अकेला आया, इतना बड़ा दावा। उस वक्त मेरे मौला गाजी ने घोड़े को एड़ नहीं लगाई, क्यों खामोश हो गए? घोड़े को एड़ नहीं लगाई, घोड़े से कहा, ये नहीं कहा कि चल, घोड़ा जानता था कि मर्दी अब्बास क्या है, चलता 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 5 लाख का लश्कर क्रॉस करके जिस मलऊन ने ये अल्फाज कहे थे उसके बिल्कुल घोड़े के सामने जनाब गाजी का घोड़ा। मौला फरमाते हैं तूने कहा है कि अब्बास चला जा, मारा जाऊंगा। उस वक्त उसके गिरबान में हाथ डाल के कहते हैं तू कहता है कि मैं चला जाऊं, मारा जाऊंगा। अरे 9 लाख के लश्कर से क्या है, तुझे
तुझे छुड़ा के दिखाए, वाह 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 छुड़ाना तो दूर की बात, अपनी जगह से हिल के दिखाए। वाह, वाह, वाह। ऐसे देखता है सारों को, जो जहां पे है वहीं पे साकित हो चुका है। उस वक्त मेरे मौला ने ऐसे उसको उठाया है, ये देखिएगा कलाई का जोर कितना है, कलाई का जोर कितना वाह। है, ऐसे उठाया है, घोड़े की जीन से ही आसमान की तरफ रवाना कर दिया। वाह, वाह। अब ये आसमान की तरफ रवाना हो रहा है और उधर लश्कर पे से सकूत टूट रहा है। वाह। जब देखते हैं घोड़े की जीन पे नहीं है, देखा कहाँ है, देखा ऊपर जा रहा है। एक कहता है वो जा रहा है, एक कहते वो जा रहा है। अरे जब वो भी ना ऊपर जा रहा था ना, ऊपर जाते जाते उसने देखा एक दरवाजा है, दरवाजे से थोड़ा नीचे रह गया। वाह। कहता है हाँ तू इसलिए बुलंद है ना, तुझे अली ने फेंका है। वाह 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 वाह, क्या बात है ये बेशक। थी शुजाअत मेरे मौला अब्बास की। और अगर मसाइब के जुमले कहूँ तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है कहना कि अब्बास कोई आम हस्ती का नाम नहीं। अरे जिसके लिए जनाब ज़हरा कुर्ता सी के जाए ना, खाली कुर्ता सीना नहीं, जिस बीबी ने जिंदगी भर अल्लाह से मांगा ही कुछ नहीं, उस बीबी ने जिंदगी में मांगा सिर्फ एक अब्बास बस। कसम खुदा की किताब पढ़ी, मैं रो पड़ा, मुझे नींद ना आई सारी रात। कहते हैं इतना मारा है कूफा और शाम के और 36 ममालिक के बदमाशों ने, इतना मारा है कि जब मौला हुसैन जनाब गाजी को उठाने आए ना, तो 7 मरतबा मेरे मौला ने, 7 मरतबा मेरे मौला ने जनाब गाजी को उठाने की कोशिश की है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि बैठ के पढ़ूं। अरे गाजी की शहादत है, कोई आम शहादत नहीं, कोई आम शहादत नहीं। अरे मेरे गाजी की शहादत है, हो सके ना रोना ना आए ना तो कोशिश करना मुंह झुका लेना, मेरा किसी पे कोई जोर नहीं। 7 मरतबा मेरे मौला ने ऐसे उठाने की कोशिश की है, जिस जगह से भी उठाते थे। अरे जो कुतुब के जुमले हैं मैं पढ़ के रो बैठा। अरे पूरा जिस्म कीमा कीमा हो चुका था मेरे अब्बास का कि 7 मरतबा उठाने की कोशिश की। 7 मरतबा जब ना उठ सके ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब को आवाज दे के कहते हैं बहन तेरा पर्दा तार तार हो चुका है। जब मेरे मौला गाजी ने कहा ना मौला अब कसम की इजाजत दे, मैंने बड़ी कोशिश की है कि सब्र कर लूं। मौला इन्होंने मेरा कासिम मार दिया, मौला कासिम अभी जिंदा था, इन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। मौला मेरा अकबर मार दिया, मेरे ओन मोहम्मद मार दिए, मेरे तमाम लश्कर मार दिया है। मैं इन्हें ऐसे मारूंगा आज। मौला मेरा गजब अंदर इतना जोश खा रहा है। मौला हुसैन मुझे आज इजाज़त दें कि मैं आज इन्हें ऐसा मारूं। उस वक्त मौला फरमाते हैं अब्बास तलवार रख दे। अरे मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अरे सोचो जनाब ज़ैनब ने कैसे सुना होगा। अब्बास नेज़ा रख दे, अब्बास तलवार रख दे, अब्बास नेज़ा रख दे, अब्बास खंजर रख दे, अब्बास तीर और कमान रख दे। मौला लेके क्या जाऊं? मौला कहते हैं जाओ नेज़ा लेके जाओ। मार याद रख गाजी मारना नहीं है हटाना है। याद रख गाजी मारना नहीं है हटाना है। पैरों पे गिर के गाजी मौला फरमाते हैं मौला मौला मुझे जाने देना, मुझे थोड़ी देर के लिए ही लड़ने दे। मौला मैं थोड़ा सा मुकाबला कर लूं। उस वक्त मौला फरमाते हैं जाओ अब्बास क्यों इतना गैज है, क्यों इतना गैज है? मौला फरमाते हैं मौला इतना गैज इसलिए है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ। उस वक्त मौला फरमाते हैं तीर भी ले जा, खंजर भी ले जा, नेज़ा भी ले जा, तलवार भी ले जा, लेकिन याद रख तू जिसे घोड़े से दौड़ाएगा मेरी सकीना को घोड़े से दौड़ाएंगे। तू जिसे तमाचा मारेगा तू मेरी सकीना को तमाचे मारेंगे। तू जिसे कूड़े मारेगा जनाब ज़ैनब को मारेंगे। याद रख गाजी मारना इतना है जितना शाम को ज़ैनब बर्दाश्त कर सके। जनाब गाजी के घर लेके चलते हैं, घोड़ा लेके चलते हैं। मुल्ला मेहदी 25 अशरे पड़े हैं मौला के, मौला अब्बास के हरम पे 25 अशरे पड़े हैं।
इतनी बड़ी हस्ती है कि जिसे मौला ने 25 अशरे पढ़ने की इजाज़त दी है। ये हस्ती फरमाती है कि एक रात ख्वाब में मुझे मौला गाजी आए और कहते हैं कि मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है, मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है। मुझे सकीना के बाद से मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मुल्ला मेहदी कोशिश करो मेरी कब्र के पास से इस पानी को दूर कर दो। अरे मौला चाहते तो खुद कर सकते थे, हमें जैसे लोगों को बताना था, मौला ने बताना था। मुल्ला मेहदी 4 शिया मजदूर लेकर कब्र की जानिब आए हैं। जब कब्र पे मजदूरों की नजर पड़ी ना, नजर पड़ते ही कहते हैं मुल्ला मेहदी कल मजलिस पड़ी थी ना, अब्बास का कद 25 हाथ था, 25 हाथ का था। घोड़े पे बैठते थे तो कदम नीचे जमीन पे रखते थे। अरे इतनी सी कब्र। मुल्ला मेहदी फरमाते हैं अरे जितना मेरे गयूर इमाम को मिला था ना उतनी ही कब्र। बता दूं कितनी कब्र है, सुन सकोगे अदादारों कि जितना बड़ा कद था ना, करबला के सबसे छोटे कद वाले असगर जितनी कब्र है। रावी बताते हैं जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि जितनी एक किताब का हुजम होता है इतनी मेरी मौला अब्बास की कब्र है। इतना मारा है शाम के इन दरिंदों ने। जब मौला गाजी शहादत हो गई ना, करबला से बीबी चली गई। अरे सोचना, याद रखना, जब ईद का दिन आता था ना तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तमाम घरों से होके ना एक घर की तरफ आती थी और वो घर होता था मेरे मौला गाजी का। मेरे मौला गाजी के घर के पास आती थी। ईद के दिन बीबी जब आई है करबला और शाम के बाद, ईद के दिन जब अपनी हवेली में गाजी के बाहर करके बाहर आई है, उस वक्त रो के फरमाती है ओ मेरा अब्बा, ओ मेरा अब्बा। उस वक्त जनाब अबुल फजल आते हैं, बीबी अब मौला बाबा नहीं रहा, बीबी आपका ये खादिम हाजिर है। अल्लाह